हेलो फ्रेंड्स। मैं आचार्य स्नेह कपूर आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने लग्न, मून एंड 12 साइंस मून साइंस ऑफ द ज़ोडिएक पढ़े हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू मेक ए कनेक्शन विद यू ऑल लाइफ लॉन्ग till I am alive, and I shall be teaching you the various topics of occult sciences. Like, I'll be teaching you Reiki, I'll be teaching you numerology, I'll be giving you the knowledge of palmistry, I'll be giving you the knowledge of astrology. So, if you like my channel, I would definitely like that you subscribe my channel so that we are in continuous touch. And any query you can ask me in comment box. And if you want, I can give you my phone number in comment box. I'll submit a link. Now coming to the topic of first house. This is also called ascendant or lagna, Tanu house. Why Tanu house? Because it tells everything about ourselves. So how we will locate first house in the Kundli? There are 12 houses, and when we make a Kundli, you can make it, you can take out it from this computer also, from any software, or manually also you can make it. How can you make it manually? Make a square and then 12 houses. So the topmost in the center is the first house. It is called Lagna also. This Rashi in this house is called Lagna. Lagna, as already told, is the Rashi rising in the eastern horizon at the time of birth of a child, of a native. Its Karka is sun. What does sun represent? As all know, sun is a very powerful planet. It is a Karka of soul. It reflects lights. It gives us eternal light. It is Atma. So everything about us can be known by first house. It is a very important house of the Kundli. If this house is strong, whole Kundli is balanced. If the planets in this house are good, then our whole horoscope is balanced. How can we say, how can we find out that our lagna, which controls our body, is good or benefic? Yes, the strength of the lagna or first house depends on the planets which are placed in it. Number 2, the planets aspecting it. Number 3, if the Pund Yog Karak or Yog Karak Karkas planet expecting it. Benefic planets like Jupiter and Venus aspecting the first house, then the strength of the house become strong. And self, the native, becomes, he or she is also strong.
the various things which first house tell us. It is our body, it is our self, it is our face. What type of hair we have, what types of eyes, what types of cheeks, what type of beauty, all these things are determined by first house and the planets placed in it and its lord. Now, what else we can see from the first house? First house also tells longevity. For our convenience, I will take Kalpurush Kundli, whose first house is represented by Mesh Rashi. Mesh Rashi, directly opposite to it is seventh house. And seventh house, because it is directly opposite to it, is our death house. First house is the beginning of the native. Our life begins with the first house. And because they are at a right angle like this, first house is here and seventh house is here. So this is our beginning and this is our death. This is a start and this is a death point. And second house from the seventh, that is eighth house, that represents Ayu, because it represents Ayu, the second from the Lagna, first house, second from the first house, that also represents death. So, second and seventh house are responsible for telling us about our death process, the planets placed in it, whether malefic or benefic, dashas, which we will study later. They all tell about this. Now, coming to the physical appearance, whether we will be tall, whether we will be fat, whether we will have curly hair, whether we have a good personality, this is all decided by our Lagna. Suppose there is Mesh Rashi in the first house, then the native belonging to this will be very active, chanchal nature ka wo. And because Rashi 1, its lord is Mars, so is energetic also. And second house, Taurus, that is governed by Venus. No, I will tell you in detail when I'll come to second house. So today only about first house. It also tells about our mental disposition. What is that? We are beautiful. We know about our face, our characters from the first house. Now there is brain also. Because without brain, तो क्या है? एक पुतला है. How our brain will react to the different situation is also decided by the Lagna or the first house. हमारी लाइफ कैसी होगी? Whether it will be smooth or there it will be troubled or there will be obstacles in our life. This will also be decided by first house and the planet placed in it, and the planets, whether malefic or benefic, aspecting it. Then
we can also further, if we go in detail, first house, if there is any yoga karak planet expecting it, there will be great achievement for the कुंडली. आप बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे. नाउ स्पैन ऑफ लाइफ. स्पैन ऑफ लाइफ भी हमें लग्न से पता चलती है. अगर हमारी लाइफ का स्पैन शॉर्ट है तो हम बहुत दूर तक, बहुत अचीवमेंट हमें नहीं मिल सकती. If we have a long span of life, then we can achieve great achievements. हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में क्या डिजीजेस आने वाली है? क्योंकि अगर अच्छे प्लैनेट्स होते हैं तो बुरे भी होते हैं, इसमें बेनिफिक होते हैं तो मैलिफिक भी होते हैं. और जब मैलिफिक होंगे और कंबस्ट होंगे तो कुछ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्लस एंड माइनस. इसी तरह ग्रहों में भी होता है. अगर कोई ग्रह अच्छा है तो हमारी वो अच्छा है तो अच्छी चीजें भी देगा और साथ में उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमें आएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा हो. जैसे सपोज जुपिटर, जुपिटर को गुरु माना जाता है. इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट. ये आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको सब कुछ देगा, लेकिन इसकी थैली में कुछ नेगेटिव भी तो है. बिना प्लस माइनस के तो चलती नहीं है जिंदगी. तो इसी से हमें पता लगेगा फर्स्ट हाउस से इसमें क्या प्लैनेट बैठा है कि हमारी जिंदगी में क्या बीमारियां आने वाली. जैसे जुपिटर है, इट कैन, इफ इल प्लेस्ड, कैन गिव डायबिटीज. मोटापा दे सकता है आपको. अब ज्ञान कारक है तो ज्ञान की तो वृद्धि करेगा, लेकिन साथ साथ आपको विद टाइम डिजीज भी आ सकती है. दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन द फर्स्ट हाउस और द प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग इट, वेदर एक्सॉल्टेड और वेदर डेबिलिटेटेड. क्या बीमारियां होंगी? आर दे क्योरेबल और नॉट क्योरेबल? धन दौलत, देखिए कितनी चीजें बताता है हमारा फर्स्ट हाउस और लग्न, जिससे हम ये सब जान सकते हैं. हमारे पास पैसा, जब हम जिंदगी जीते हैं तो हमें पैसे की भी जरूरत होती है ना. हमारे पास पैसा कितना होगा, धन दौलत कैसी होगी, ये भी हम फर्स्ट हाउस से जान पाते हैं. हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम कैसा हमारा बिहेवियर है, ये बॉडी लैंग्वेज भी हमें फर्स्ट हाउस ही दर्शाता है. हमारा बॉडी का ग्रेस कैसा है, बोलते हैं ना कि दैट पर्सन इज वेरी ग्रेसफुल. वो लगना लॉर्ड, जो लगन का लॉर्ड होता है, लगन का लॉर्ड मीन्स कि जो फर्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा होता है उसका जो देवता होता है, लॉर्ड होता है, वो डिसाइड करता है उसके ऊपर क्या. जो ग्रह वहां पर बैठा होता है किसी भी घर में, उससे ज्यादा पावरफुल वो प्लैनेट होता है जो कि उसको देख रहा होता है. हर प्लैनेट्स की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं, जो कि मैं आपको आगे अगले वीडियोस में बताऊंगी. मेटेरियलिस्टिक गेन्स के बारे में भी फर्स्ट हाउस बताता है, लग्न बताता है. मेटेरियलिस्टिक गेन्स फ्रॉम आवर को-बॉर्न ब्रदर सिस्टर से, बिकॉज ब्रदर सिस्टर्स का हाउस है थर्ड हाउस, और जो लग्न है वो थर्ड हाउस से 11th हो गया. इट इज 11th फ्रॉम थर्ड हाउस. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 11 हो गया ना. ये 11th हाउस हो जाता है थर्ड हाउस से, और थर्ड हाउस है बहन भाइयों का. तो उनसे आपको क्या गेन होने जा रहा है? उनके पैसे से मटेरियलिस्टिक गेन होगा,
या रिश्तों का गेन होगा, ये सब भी हमें लग्न ही बताता है। आपकी मदर का प्रोफेशन कैसे होगा? मदर का प्रोफेशन कैसे देखेंगे? चौथा घर होता है माँ का, और जो लग्न है उससे 10वां है, 10th हाउस। लग्न और फर्स्ट हाउस इज 10th फ्रॉम 4th, तो वी कैन डिसाइड द प्रोफेशन ऑफ मदर, और मदर से हमको क्या क्या उनका मेटेरियलिस्टिक गेन होंगे, उनसे प्यार मिलेगा, कैसे हमारे रिश्ते होंगे, ये सब हम लग्न से जान सकते हैं। और हमारी कैपेबिलिटीज क्या होंगी, हमारी अचीवमेंट्स लाइफ की क्या होंगी, ये भी हमें फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस में जो लग्न होता है उसका लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है तो आपको बहुत अचीवमेंट्स मिलेंगे। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है। स्कॉर्पियो लग्न मीन्स 8 नंबर पहले घर में है, और उसका और हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं राशि को कुंडली में, हॉरोस्कोप में, तो जो स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली का 9वां घर है उसकी राशि है चंद्रमा की। और अगर वो चंद्रमा 7वें घर में चला जाता है जहां पर 2 नंबर की राशि बैठी है तो वो एग्जॉल्ट कर जाता है। लेकिन अब इसका जहां पर चंद्रमा बैठा है 7वें घर में, उसका डिस्पोजिटर है 2, और उसका लॉर्ड, उसका स्वामी कौन है? शुक्र। अगर वो डेबिलिटेट हो जाता है, डेबिलिटेट मीन्स नीच का हो जाता है, तो आपको आपके सुखों में कमी आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भी प्लैनेट का स्वामी होता है उसी से हमें प्लस और माइनस मिलता है। सुख, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये भी वही लॉर्ड, हमें लॉर्ड पे बहुत डिपेंड करता है, किसी भी प्लैनेट के स्वामी पे डिपेंड करता है। तो ये भी हमें उसी लग्न से ही या असेंडेंट से, फर्स्ट हाउस से पता चलता है। तो let us summarize. Lagna is self, our body. It tells us all about ourself, our features, our beauty, our character, our achievements, our monetary gains, our property, IU, relations with brother, relation with mother, everything about. तो कहते ना, एक के साधे सब सधे। तो अगर खुदा की तरफ से पहला घर सध गया तो समझ लीजिए आपका जीवन सध गया, पूरी कुंडली संवर जाती है। और जरूरी नहीं है सबकी एट द टाइम ऑफ बर्थ की सबके प्लानिटरी पोजीशन एक हो, डिफरेंट डिफरेंट होती है, उस पर घबराने की कोई बात नहीं है। देयर आर सर्टेन रेमेडीज, आई विल टेल यू लेटर, ग्रेजुअली। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ग्रेजुअली सब बताऊंगी कि मेलिफिक प्लैनेट्स के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस हैं, बेनिफिक के क्या हैं, और इनकी क्या रेमेडीज क्या हैं। अगर कोई ग्रह कमजोर पड़ रहा है तो बहुत से उपाय हैं, एंड मंत्रास हैं, अदरवाइज भी प्रेयर्स हैं, और भी बहुत कुछ हैं जो मैं रेमेडीज आपको बताऊंगी। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। धन्यवाद। जल्दी आती हूँ सेकंड हाउस दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।